Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, राम 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 हरे राम हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna. बहुत बहुत हरे धन्यवाद सभी का कृष्ण ज्वाइन हरे करने कृष्ण। हाँ। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, सिंग करते रहिए, नाम जप करते रहिए, कृष्णा का प्रेम का प्रचार करते रहिए, हैं? और फंसते रहिए। क्यों बोला फंसते रहिए? बोला है तो कुछ रीजन होगा, हैं? कोई फंसाएंगे, अभी रुकिए, थोड़ा सा समय रुकिए, जब बोला है तो फंसाएंगे। परंतु देखिए, आंसर सही सही कीजिएगा, सही सही आंसर कीजिए, उसके बाद फंसिए, उसके बाद समझ में आएगा अच्छा हम तो फंस गए। हाँ, चिंता मत कीजिए, फंस करके भी अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा। हम आपके अहित के लिए थोड़ी ना क्या कर, हम आपका हित करेंगे क्या? चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं, आज बहुत बहुत स्पेशल डे है। क्या है आज? है? हरे कृष्ण। गोवर्धन पूजा प्रभु जी। गोवर्धन पूजा। भगवान गोवर्धन को अपनी शक्ति देते हैं। आज सभी आप पोस्ट पढ़े होंगे, ग्रुप पे जो पोस्ट आया ना वो पढ़िएगा, जिनने नहीं पढ़ा है जरूर से पढ़िएगा, आरयू में भी भेजा है, है ना? जरूर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन पूजा, देखिए, कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमको पहाड़ पूछने पूजने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, हमको पहाड़ वहाड़ नहीं पूजना, नहीं पूजना, हमको पहाड़ भी पूजना। परंतु जिसमें कृष्णा अपना पर्सनल एट्रीब्यूट डाल दे, वो निर्जीव पहाड़ नहीं होता। ये ठीक उसी प्रकार है, हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, परंतु अर्च विग्रह की सेवा तो करनी है, बिल्कुल करनी है। अर्चनम नव विधि भक्ति, तो हम पहाड़ की पूजा नहीं करते हैं। जब गोवर्धन पर्वत बोलते हैं तो उसका अर्थ पर्वत नहीं होता, उसका अर्थ ये होता है वो विशिष्ट स्थान जहां पे कृष्णा ने अपना पर्सनल एट्रीब्यूट डाल दिया है, ठीक वृंदावन की तरह। अब यहां पे कहीं गिर जाइएगा, चलते फिरते कभी गिर गए, कुछ हो गया, कोई धूल मिट्टी कहीं पे लग गया, तो फटाफट साफ करने लगे। परंतु वृंदावन की धूली लग जाए, स्वाभाविक स्थिति तो हमारे यही होता है कि हम झाड़ने लग जाते, साफ करने लग जाते, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, वृंदावन की धूली लगी है तो वो कोई मिट्टी नहीं है। दिखने में मिट्टी लग रहा होगा, परंतु जिस प्रकार अभी आप लोगों को तीनों धाम की धूली सबको पहुंची होगी, उसका तिलक होता है, तिलक। तो अगर कृष्णा और अगर श्रीमती राधा रानी महारानी किसी में अपना पर्सनल एट्रीब्यूट डाल दें, तो वो निर्जीव नहीं होता, वो जीवंत हो जाता है, उसमें जीवन आता है। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, अब नहीं समझ पाते मत समझिए, परंतु जो लोग गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं,
उनको ये विशिष्ट ज्ञान पाने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिलता है। अब एक बात बताने जा रहा हूँ, और उससे पहले ज़रूरत ये है कि आपको इस सच-सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा सब कुछ चैट में लिख देने का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा चैट में लिख देना का। अगर नहीं भी लिखना चाहें, हैं? अपने आप को झूठ अभी मत बोलिएगा। अगले 5 मिनट झूठ मत बोलिएगा, जीवन बदलेगा। अगले 5 मिनट में ही जीवन बदलेगा। तो गोवर्धन पूजा की एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो देवी-देवता की नियमित रूप से भक्ति करते हैं? जो बोला वही, नियमित रूप से, नियम बना करके, देवी-देवता की कुछ ना कुछ थोड़ी-सी भक्ति करते हैं। देवी-देवता की नियमित रूप से भक्ति करते हैं। वाई, मी, आई जल्दी से लिखिए चैट में। देवी-देवता की नियमित रूप से भक्ति करते हैं। हाँ, जल्दी लिखिए, लिखिए। नहीं करते हैं वो भी लिख दीजिए, परंतु करते हैं तो जल्दी से लिखिए। देवी-देवता की नियमित रूप से, हमको ये करना है तो करना है ना? करते हैं। जल्दी-जल्दी लिखिए, चैट में लिखिए। यस, जल्दी-जल्दी लिखिए, 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 लिखिए। हाँ, देवी-देवता की नियमित रूप से भक्ति करते हैं। जल्दी से लिखिए, अगर नहीं लिखिएगा हाँ, 300 दिन, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, देवी-देवता की नियमित रूप से भक्ति करते हैं। जल्दी-जल्दी लिखिए। हाँ, यस, हाँ, यस, हरे कृष्णा। सब कोई लिख दिए? पक्का? हाँ, ठीक है। नियमित रूप से करती है ना? नियमित रूप से करती है ना? बस, ठीक है। हाँ, हो गया गड़बड़, फँस चुके हैं आप। इस दिवांगर शिला प्रपात, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है? मैं क्या बोलूँगा? हैं, आप लोग तो जानते हैं, मैं बहुत सीधा-साधा, हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये लेक्चर है, श्रीमद् भागवतम 1.2.26 पे वृंदावन में नवंबर 6, 1972 को। दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता। भगवद गीता में ये बताया गया है। कमा कमाइस तैस तैर ऋता जनन यजन्ते अन्य देवता BG 7.20. Those who worship other demigods, they have become blind and though they have lost senses. देखिए, मैं नियमित रूप से चला करके जोड़ा था। उसके जोड़ने का एक कारण, सम्मान हमको पूर्ण करना है, परंतु अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? आपने एक लक्ष्य बना रखा है कि हमको ये करना है ना? अगर लक्ष्य बना करके कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप उन पे भी आश्रित हैं। फिर आप कृष्णा के संदर्भ में नहीं देख रहे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उसके बाद। पहले समझते हैं क्या-क्या लिखा होगा। हृता जना, हृता जना, रियल नॉलेज इज लॉस्ट। अगर देवी देवता की भक्ति करें तो रियल नॉलेज इज लॉस्ट, रियल नॉलेज इज लॉस्ट। Therefore, they they are after so many demigods.
इसीलिए वो लोग इतने सारे देवी देवता के पास है। कृष्णा सेज इट इज नॉट माई मैन्युफैक्चर्ड वर्ल्ड। कृष्णा बोलते हैं ये मेरा बनाया हुआ जगत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ वर्शिपिंग एनी डेमिगॉड। कोई जरूरत नहीं है देवी देवता की वर्शिप पूजा करना। दिस इज गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में क्या बोला गया है कि कोई देवी देवता की पूजा नहीं करना। देखिए, जब पूजा नहीं करना मतलब आदर नहीं करना नहीं बोल रहे, दोनों अलग है। जब हम लक्ष्य बना करके देवी देवता की पूजा करते हैं, उस पूजा को मना किया गया। आदर हमेशा करना है, शुद्ध भक्तों का आदर करना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, देवी देवता का आदर करना छोड़ देते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो देवी देवता का आदर करना छोड़ देते। एकदम गलत बात। सम्मान पूर्ण होना चाहिए, परंतु देयर इज नो नीड ऑफ वर्शिपिंग एनी डेमिगॉड। दिस इज गोवर्धन पूजा। दिस इज गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा क्या है कि देवी देवता की उपासना नहीं करना है, देवी देवता की भक्ति नहीं करनी है। अब आगे क्यों लिखा हुआ है वो जानेंगे। नंद महाराज वाज अरेंजिंग फॉर द वर्शिप ऑफ इंद्रा एंड कृष्णा स्टॉप्ड इट। देखिए, कृष्णा जो भी करते हैं वो किसी कारणवश करते हैं, ठीक है। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब आपको समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी। बोले कि हम तो बुद्धू हैं, मूर्ख। मूर्ख है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्य कुछ और हो जाएगा। आप मूर्ख हो सकते हैं, आप आंख पे पट्टी लगा सकते हैं, परंतु इसका मतलब नहीं है कि प्रकृति बदल जाएगी। तो नंद महाराज वाज अरेंजिंग फॉर वर्शिप ऑफ इंद्रा। इंद्रा की इंद्रदेव की अ, भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए नंद महाराज कर रहे थे तैयारी। कृष्णा ने मना कर दिया एंड ही engaged in the worship of Govardhana, which is representation of Krishna, that is Govardhan। अभी जो पोस्ट आया वो भी देखने वाले है ना। जो पोस्ट आया वो भी देखने वाला है। उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बहुत जगह से ये सारी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। चलिए ये एक पढ़ते हैं, है ना। कृष्णा बुक से ये जो सारा रेफरेंस है ना, ये एकदम ऑथेंटिक रेफरेंस है। सब कोई कृष्णा बुक से है, सब कोई श्रीमद् भागवतम से है, सब कोई भगवत गीता से। तो एक भी रेफरेंस कुछ ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट आप लोगों को जो कोट आया था वो भी यहीं से निकाला गया, ठीक है। उसको बहुत एडिट किया गया था, बहुत बार, ठीक है। हाँ, ओके। सोचा गया था पहले इतना लंबा भेजे, नहीं इतना करते हैं, नहीं इतना करते हैं, नहीं इतना करते हैं, तो वो भेजा गया। ओके। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मतलब कृष्णा therefore advised cowherd men to stop Indra yagna and begin the Govardhana puja in order to chastise Indra। देखिए, कृष्णा जो भी करते हैं उसके पीछे कारण होता है। आप सोच के देखिए, इंद्र को अहंकार तभी आना था जब कृष्णा वहां पे गए थे, नंद महाराज के पास गए थे, तभी अहंकार आना था। उससे पहले आ गया होता, उससे बाद आ गया होता, पर तभी आना था। आप समझिए, इसमें इंद्र का भी आप गलती मत मानिए। इंद्र देखिए कितना गौरवान्वित हो गए, कितने बुरे व्यक्ति हैं, एकदम गलत बात। इस प्रकार से मत देखिए। इंद्रदेव शुद्ध भक्त है। आप किसी शुद्ध भक्त की गलती मत देखिए। आप इस बात को समझिए, आपको गलती नहीं निकालनी है। आप देवी देवता की भक्ति ना भी करें, आपको गलती नहीं निकालनी है। इसमें मत लगिएगा कि हम देवी देवता की गलतियां निकाल रहे हैं।
हम लोगों का स्वाभाविक अस्तित्व क्या होता है, स्वाभाविक तरीका क्या होता है कि जब हम किसी को अच्छा नहीं जानते ना, जब किसी को अच्छा नहीं जानते हैं, तो फटाफट उसको बुरा जानना शुरू कर देते हैं। उसकी बुराई निकालने लग जाते हैं, उसकी गलती निकालने लग जाते हैं। हमको गलती नहीं निकालनी। गलती निकाल करके क्या करेंगे? किसी को गलत साबित करके क्या करेंगे हम? देखिए, समझिए इस बात को। अगर हमने देवी-देवता की गलती निकाली, तो हम अपने आप को देवी-देवता से उच्च स्थान पे समझ रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? कभी-कभी जस्टिफाई करने के लिए ना, जैसे आज बता दिया कि देवी-देवता की उपासना करना गड़बड़ है, ठीक है? अब जा करके स्वाभाविक स्थिति होती है, सामान्य जन ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करने लग जाते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सबके पास जाएँगे और देवी-देवता की कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेंगे, बुक खोलेंगे और गलती निकालना स्टार्ट करेंगे। अरे मूर्ख! आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि शुद्ध भक्तों की गलती निकालने लग जाए। बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमको अनादर नहीं करना है। हमको ये मालूम होना चाहिए क्या करना है, परंतु ये नहीं कि हम अनादर करना है। इंद्र की भी गलती मत निकालिए। इंद्र देखिए अहंकार में डूब गए थे। वो प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल भी वी शुड नॉट लाफ एट इंद्र। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी देवी-देवता उपासक है, जो भी देवी-देवता की भक्ति करते हैं, मुझे एक बात बस बता दीजिए। आप लोग इंद्रदेव की भक्ति करते हैं क्या? इंद्रदेव की पूजा करते हैं? पूरे विश्व में उठा लीजिए, मेरे को बताइए। इंद्रदेव की भक्ति करते हैं? सूर्य देव की नियमित रूप से, फिर से नियमित रूप से आ जाते हैं, है ना? वो क्या रूल के अनुसार है, हर दिन करेंगे, हाँ। सूर्य देव की करते हैं, चंद्रमा की, भूमि पूजन, हाँ? शनि देव, शुक्र, है? वायु, वायुदेव, सूर्य देव करते हैं? क्यों नहीं करते? सबकी करते हैं? हैं? 33 कोटि देवी देवता सबकी करते हैं? सबकी करते हैं ना? और 33 कोटि की भी करते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं, कोई बोले कि 33 कोटि की भी करते हैं, बाकी शुद्ध भक्तों की क्यों नहीं करते हैं? वृंदावन जाइए, इतने शुद्ध भक्तों की समाधि लगी हुई है। हर की उपासना, हर की भक्ति डेली होनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? अगर एक की किए, दूसरे की नहीं किए, तो दूसरे का अनादर नहीं किया क्या? एक को उच्च समझा है, दूसरे को निम्न नहीं समझा क्या? काली देवी की पूजा करते हैं, सरस्वती देवी की नहीं करते हैं। तो सरस्वती देवी को नीचे नहीं समझा क्या? सभी देवी देवता की पूजा कर लेंगे। सच बता रहा हूँ, इतना सामर्थ्य नहीं है किसी में कि सारी देवी देवता की पूजा कर ले। तो एक देवी, एक देवता की पूजा करने से दूसरे देवी या दूसरे देवता की अनादर ऑटोमैटिकली होता है। ऑटोमैटिकली होता है। हमारी एबिलिटी नहीं है। और आप उनकी पूजा कैसे करते हैं? बस आरती करके?
किसने बताया है आरती करके पूजा कर लेनी चाहिए? किस शास्त्र में आपने पढ़ा है कि आरती करके पूजा कर लेनी चाहिए? हम ऐसा सोचते हैं, मैंने शायद कभी बताया था, किसी समय मेरा भी ऐसा होता था कि आरती की बुक होती थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऊपर में लिखा रहता था। मंडे है वो वाला मंडे वाला पेज खोलो, अच्छा ये और ये मंडे को हाँ, मंडे की आरती करते हैं, चलिए मंडे है आज। पर जब हम इतनों की आरती करते हैं, तो हम बाहर की आरती छोड़ देते हैं। और आरती करके ही भक्ति कैसे होगी? आरती करके ही उनका आदर कैसे होगा? कैसे होगा? सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा। प्रभु जी आज कैसी बात कर रहे हैं? गोवर्धन पूजा का अर्थ वही है। इंद्रदेव का वो पोजीशन उसीलिए बनाया गया और इंद्रदेव को एज एन एग्जाम्पल उसीलिए सेट किया गया, उसीलिए स्थापित किया गया। कृष्णा बाल रूप में है, सभी से परस्पर संबंध है, वो कैसे बोले कि मेरी भक्ति करो? भगवत गीता में तो बोल देते हैं, परंतु बाल रूप में है, अब कैसे बोले सभी को कि मेरी भक्ति करो? तो बोलते हैं मैं ही गोवर्धन हूं, इसकी भक्ति करो। अच्छा पढ़े ना पोस्ट, मैं ही गोवर्धन हूं। अब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो मूर्ख होंगे वो बोलेंगे कि अरे देखिए गोवर्धन की भक्ति करने बोल रहे हैं, पहाड़ की भक्ति करने। वो पहाड़ नहीं है गोवर्धन। गोवर्धन जीवित कृष्णा है। तो स्थिति ऐसी है, चाहे कोई कितना भी चाह ले, देवी देवता की उपासना करे तो भी वो फेल हो रहा है, नियमित रूप से फेल हो रहा है, गारंटी फेल हो रहा है। हम कृष्णा की उपासना करके, रादर कृष्णा की भक्ति करके देवी देवता की उपासना ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, देवी देवता की भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर अगर देवी देवता की भक्ति करने का लक्ष्य बना ले, तो ना तो देवी देवता की भक्ति होगी, ना कृष्णा की भक्ति होगी, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि हमारा समर्पण कृष्णा पे है ही नहीं। हमारा समर्पण कृष्णा पे है, और इस देवी पे है, उस देवता पे, इस देवी पे, उस देवता पे। जो भी नियमित रूप से या कृष्णा की असम ऊर्ध्वा पोजीशन मान करके देवी देवता की भक्ति करते हैं, सबके साथ यही होता है। सबके साथ यही होता है। कुछ डिवोटीज जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा ये हल्ला नहीं करता क्योंकि मेरे को अनादर नहीं करना है। कभी जब मंदिर में भी, कोई मंदिर होता है ना आजकल, जो मंदिर होता है उसमें देवी देवता और भगवान को बराबर कर देते हैं। मेरा तो मन करता है ऐसे पुजारियों से एक बार पूछे कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? अच्छा भगवत गीता के ये अध्याय में ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझिए तो। वो कभी ये डिनाई नहीं करेंगे, कभी ये मानेंगे ही नहीं कि भगवत गीता नहीं पढ़ी है या भगवत गीता में कुछ गड़बड़ है। वो कभी नहीं बोलेंगे। बहुत ही रेयरली कोई कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में होगा तो बोल सकता है, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। उनसे पूछिए कि ये क्या लिखा हुआ है। आई एम ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, मेरे से ही सब जन्म लेते हैं।
हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बातें करते हैं, आधा-अधूरा ज्ञान रखते हैं, पर ये बात नहीं जानते कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मैं ही सृष्टि करता, मैं ही पालन करता, मैं ही संहार करता भी हूँ। ये क्या है? हम तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जानते हैं। कृष्णा बोलता है मैं तीनों करता हूँ। तो भगवत गीता में गलत लिखा हुआ है। देखिए, भगवान कृष्ण सभी की चेतना अनुसार सभी देवी-देवता को प्रस्तुत कर दिए हैं। जिसकी जिस प्रकार की चेतना वो उस प्रकार के देवी या देवता के प्रति आकृष्ट होकर के उनकी भक्ति कर ले। कृष्णा का ही विभिन्न अंश है। शुद्ध भक्त है, परंतु कृष्णा नहीं। कल हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी थी। कृष्णा के किसी अंश पे गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में देखा था। याद है ना सभी को? अगर हम आकृष्ट हो गए, तो हम गर्भोदक्षाय विष्णु के पास जाएंगे, कृष्णा के पास नहीं जाएंगे। कृष्णा ने नियम एकदम सरल बना रखा है, एकदम सिंपल। तुमको क्या चाहिए? प्रॉब्लम अब यहां पे आता है। जब भी हम नियमित रूप से देवी देवता की उपासना या भक्ति करें, अब हमको पूर्ण रूप से कृष्ण चाहिए ही नहीं। हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आश्रित है ही नहीं। हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आश्रित नहीं। अब जब कृष्णा के प्रति आश्रित नहीं है, तो जिसके प्रति आश्रित है वो पा लीजिए। देखिए, जब तक आप पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित नहीं रहिएगा, तब तक कृष्णा के पास नहीं रहिएगा। 90% कृष्णा पे आश्रित है, तो 10% और कर लीजिएगा अगले जन्म में, उसके बाद आ जाइएगा। ऐसा नहीं होगा 90% है ना तो कृष्णा ले चलिए ना, करीब करीब तो पहुंच ही गए। नहीं नहीं, अभी पहले 10% जो मलिनता है उसको समाप्त कर लीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए और अन्य कोई सहारा भी नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी ये स्थिति नहीं है तब तक कृष्णा के पास नहीं। अन्य कोई अभिलाषा है तो पहले जाकर के वो कर लीजिए, और अन्य कोई आश्रित है? आपको एग्जांपल चाहिए? एग्जांपल चाहिए? हाँ, पांचाली। क्या क्या नाम था? द्रौपदी। वो सभी से आशा लगाए हुई थी। ये धूर्त, हाँ? दुर्योधन किसको भेजा था लाने? जो भी, ये धूर्त दुर्योधन और इसके साथी, ये सब तो पाप कर्म में लिप्त है, परंतु राजमहल में बहुत सारे विशिष्ट गण हैं। वो मुझे बचा लेंगे। लोग समझते नहीं है कि ये इवेंट हुआ क्यों।
दुःशासन, है ना? ये इवेंट हुआ क्यों? हाँ? लोग समझते नहीं है। वापस से वही है, जिस प्रकार से इंदिरा का यहाँ पे इवेंट है, उसी प्रकार से वहां पे द्रौपदी का इवेंट है, और कुछ नहीं है। सब एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से सब एक ही चीज, एक ही चीज के प्रति ले जा रहे हैं, एक ही रास्ता, एक ही डेस्टिनेशन, लक्ष्य। वहां पे द्रौपदी महारानी फिर एक्टिंग करती है। अब सब कोई एक्टिंग ही कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, पांडव जो शुद्ध भक्ति में लिप्त है? कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए, असलियत है ये असलियत। क्या? कि कोई अगर जुआ, जुआ को क्या बोलते हैं? चौसर। चौसर का नियम ऐसा था कि दूसरा जो व्यक्ति था, वो कभी भी आपको चैलेंज करे तो आपको एक्सेप्ट करना है। क्षत्रियों का ये दायित्व होता है कि कभी भी कोई चैलेंज कर दे तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब सोच के देखिए, पांडव कौन है? पांडव शुद्ध भक्त है। पांडव कृष्णा से पहले ही सहायता नहीं चाह लेते क्या? आप इतिहास उठा करके देखिए, जब भी पांडव संकट में पड़े, कृष्णा को सबसे पहले याद किया और कृष्णा आ जाते थे। भीमसेन हमेशा कृष्णा को याद करते थे, अर्जुन हमेशा कृष्णा को याद करते थे, युधिष्ठिर महाराज हमेशा कृष्णा को याद करते थे। किस इवेंट में कृष्णा को क्यों नहीं याद किया? तो ये सारा एक तरीका होता है ताकि भगवान की महिमा कर पाए। तो ये इवेंट भी इसीलिए हुआ था। हुआ क्या कि द्रौपदी सोच के आई, इस प्रकार से प्रकट की, सोच के आई कि राजसभा में तो बहुत सारे, राजमहल में तो बहुत सारे विशिष्ट गण हैं, सब बचा लेंगे। एक से याचना, दूसरे से याचना, तीसरे से याचना, सबसे याचना, फिर अंतिम में क्या, अंधा राजा क्या नाम था? हाँ? धृतराष्ट्र, उससे याचना, और सबने साथ छोड़ दिया। अब कोई आश्रय नहीं रहा, किसी पे वो आश्रित नहीं थी। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, यही हाईएस्ट लेवल है। ये करना ही पड़ेगा। सोचिए कि नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई प्रेम के मार्ग से ये नहीं करे तो कष्ट के मार्ग से करना ही पड़ेगा ये। फिर द्रौपदी ने क्या किया? फिर द्रौपदी ने कृष्णा को याद किया और बोला, कृष्णा अब आप ही बचाइए, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूं, बस आप ही बचा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वृंदावन वासियों ने कृष्णा के कहने पे इंद्र की पूजा छोड़ दी। इंद्र ने बहुत वज्रपात कर दिया, बहुत सारा बिजली, बहुत सारा पानी का वर्षा कर दिया है। अब याचना इस प्रकार से, कृष्णा अब आप ही बचाओ, कृष्णा अब आप ही बचाओ, यही है शुद्ध भक्ति। हम लोग कल परसों देख रहे थे, शायद 5 PM वाले क्लास में। कृष्णा को दीनता बहुत प्रसन्न है, पसंद है। दीन स्थिति बहुत पसंद है। जब हमारे पास कुछ ना हो, ये बहुत पसंद है कृष्णा को। तो कल जब 5 PM की क्लास हो रही थी, उस समय हम लोगों ने देखा था एक बार।
दीनता तब नहीं होती जब हमारे पास संसाधन की समाप्ति हो जाती। कर्ण के पास तो कुछ भी नहीं था, कोई राज सिंहासन नहीं था, उसके पास बहुत अच्छी अवस्था थी, भगवान के प्रति समर्पण करता, परंतु उस स्थिति में उसने क्या किया? मूर्खतापूर्वक दुर्योधन का साथ लिया। पांडवों के पास इतना कुछ था, सब कुछ था, परंतु कृष्णा के कहे बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। अगर कृष्णा पसंद नहीं है तो कुछ स्वीकार नहीं करते थे। इसका प्रमुख एग्जाम्पल ले, अर्जुन को जब मौका मिला नारायणी सेना और कृष्णा में, तो उन्होंने पल भर का समय नहीं लगाया, उन्होंने कृष्णा को चुना। तो हम जब तक हर स्थिति में कृष्णा को नहीं चुनेंगे, हम जब तक पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, कहां से होगी भक्ति? नहीं होगी, नहीं होगी भक्ति, है ना? इसीलिए यहाँ पे इंद्र एक एग्जाम्पल बने कि हमको किसी देवी देवता की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्णा की भक्ति करें, दृढ़ता से करें। ऐसे भी जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको अन्य किसी की भक्ति करने की कोई आवश्यकता होती भी नहीं है। जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको कोई नियम पालन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऑल्दो शुरुआत में हमको वैधि भक्ति से कार्य करना होता है और हमेशा समर्पित रहना पड़ता है। आज ही हम लोग 5 पीएम पे जान रहे हैं। परंतु स्थिति तो यही है कि अगर कोई भक्ति में रत हो गया, तो उसके लिए कोई नियम नहीं होता। ऐसा नहीं होता ये नियम का पालन करना ही होगा, नहीं, नहीं, कोई नियम का पालन मत कीजिए, तब भी चलेगा, अगर शुद्ध भक्ति में रत है तो, है ना? इसीलिए इसीलिए देवी-देवता की उपासना की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो नियमित रूप से कर रहे हैं, नियमित रूप से कृष्णा के लिए करिए। बाकी जो करते हैं, बाकी देवी-देवता के लिए जो आदर सम्मान है, आदर कीजिए, परंतु इस बात को जानते हुए कि पहला, ना तो हम उनकी भक्ति ढंग से कर पाएँगे, हुँ? बाकी देवी-देवता की अगर विधि पूर्वक भक्ति ना की जाए, तो उनका अनादर होता है। कृष्ण माफ कर देते हैं। गुरु आपका अपराध अपने ऊपर ले लेते हैं। कृष्ण देखिए, इधर भी क्या है, एक तरफ तो गुरु आपका अपराध ले लेगा, ऊपर से भी अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो कृष्ण माफ कर देते हैं। परंतु अगर देवी देवता के प्रति कोई अपराध कर रहा है तो उनको कौन बचाएगा? कैसे बचेंगे? मुझे कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो पता है देवी देवता की उपासना इस प्रकार होनी है। अगर कोई बोले भी क्या शिव जी पे जल डालना है, जो कि अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, आदर होना ही चाहिए, नियम से नहीं। ठीक है, शिव जी पे जल डालना है, बहुत अच्छी बात। मुझे एक बात बताइए, क्या आप जो शिव जी पे जल डाल रहे हैं वो शुद्ध जल है? आप तो मलिन जल पीते ही हैं, आप तो मलिन जल से स्नान करते ही हैं, उन्हें भी मलिन जल ही डालना है।
और बोलते क्या है कि उसी में प्रसन्न हो जाए। बोले हैं क्या कि मलीन जल भी डाल दोगे तब भी चलेगा? तो हम इस प्रकार से हम कुछ भी कर लें, छोटे से छोटा कार्य कर लें, वहाँ पे अपराध करके आते हैं। एक तो जिस देवी-देवता की उपासना कर रहे हैं उनके प्रति और दूसरे जिसके नहीं कर रहे हैं उनके प्रति भी। अभी एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, ऑल्दो ये हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, बहुत लोग करते भी होंगे। कोई जाकर के शिव जी की भक्ति कर ले, ठीक है? और नंदी नंदी की भक्ति ना करे। नंदी है ना? हाँ? एंट्री में खड़े रहते हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये स्वीकार्य है? तो आप समझिए, देवी-देवता की भक्ति कर पाना अत्यंत असंभव है। असलियत तो ये है कृष्णा की भक्ति कर पाना असंभव है। परंतु कृष्णा ये अश्योर करते हैं, देवी-देवता नहीं करते। कृष्णा ये अश्योर करते हैं, कृष्णा ये भगवत गीता में बोलते हैं, जो मेरे पास आना चाहता है, आई प्रोवाइड द नॉलेज थ्रू व्हिच दे कैन कम बैक टू मी। मैं उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो वापस आ सकते हैं। आप सोच के देखिए, आज जब क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने मालूम है क्या सोचा था? मैंने सोचा था बस वो एक कोट है वो बता दूँगा। ठीक है? जो एक कोट बताया था ना, श्रीमद् भागवतम का था। मैंने इनफैक्ट लिखा भी हुआ था। परंतु आँखों के सामने देखिए, अगर मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, इतने पास टाइम आए, मैंने पांडवों के बारे में सोचा भी नहीं था, क्लास से पहले नहीं सोचा। इतने पास टाइम आए, तो कहाँ से आए? कौन बता रहा है? ये मेरी बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार कृष्णा सभी पे कृपा करते हैं, सभी पे कृपा करते हैं, है ना? परंतु ज़रूरत ये है कि हम उसे स्वीकारें। चलिए एक बार ये जल्दी से पढ़ लेते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं, ये भी बहुत अच्छा पास टाइम है। कृष्णा बुक से मेंशन्ड है। अच्छा ये दूसरा है, ये वाला। Okay, the supreme personality of Godhead, Krishna, therefore advised cowherd men to stop Indra Yagna and begin the Govardhana Puja in order to chastise him, who was very much puffed up at, at being the supreme controller of the heavenly planet. तो कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने ग्वालों को मना किया कि इंद्र की पूजा मत कीजिए, गोवर्धन की पूजा कीजिए, इंद्र को चैस्टाइज करने के लिए। बताया अभी आपको, इसमें इंद्र की गलती मत मानिए, इसमें ये जानिए कि इस प्रकार से इंद्रदेव ने कार्यकलाप किया ताकि भगवान की महिमा का गुणगान हो। द ऑनेस्ट एंड सिंपल काउहर्ड मेन headed by Nand Maharaja accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. जो सच्चे और सीधे ग्वाले थे सबसे आगे, उनमें नंद महाराज, उन्होंने कृष्णा के ये प्रस्ताव को स्वीकारा और जो भी कृष्णा ने बोला, हाँ, उसको साक्षर करने का कोशिश किया। दे परफॉर्म गोवर्धन वर्शिप एंड सर्कम्बुलेटेड द हिल। उन्होंने फिर गोवर्धन की पूजा की और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई, फॉलोइंग द इनॉग्रेशन ऑफ गोवर्धन पूजा। उसी के बाद
गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। People in Vrindavan still dress nicely and assemble near Govardhan Hill. अभी भी वृंदावन में लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। To offer worship and circumambulate the hill, uh, leading their cows all around. बड़ी मूर्खता है, बड़ी मूर्खता है इस भौतिक जगत में जहाँ पे गौ माता की हर दिन, हर दूसरे दिन किसी न किसी कारण से पूजा होती है और इसी धरा पे हाँ, गौ माता की ना इज्जत होती है, ना उन्हें खाने को भी अच्छा से मिल पाता है। मूर्ख लोग, बताइए। एक तरफ पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको खाने को भी नहीं देते। मूर्ख नहीं है? According to the injunction, Lord Krishna, Nanda Maharaj and the cowherd men called in learned Brahmanas and begin the worship of Govardhana hill by chanting Vedic hymns and offering prasadam. इसके बाद क्या हुआ? नंद महाराज और ग्वालों ने अ, ब्राह्मणों को बुलाया और वहाँ पे गोवर्धन की पूजा की और वैदिक मंत्रों का उच्चार किया, प्रसाद का वितरण किया। The inhabitants of Vrindavan assembled together, decorated their cows and gave them grass. Keeping the cows in front, they began to circumambulate Govardhana hill. The gopis dressed themselves very luxuriantly and sat in bull-driven carts, chanting the glories of Krishna's pastime. The brahmanas assembled there to act as priests for Govardhana Puja, offering their blessings to the cowherd men and the wives of the इस तरीके से क्या हुआ सब कोई वृंदावन के लोग अ, गाय को आगे रख के गाय को पहले चारा खिलाया, गाय को घास खिलाई, उसके बाद गाय को सबसे पहले परिक्रमा लगाई और उनके पीछे-पीछे सब कोई परिक्रमा लगाए। गोपियों अच्छे से अ अ, स सज-धज के कृष्णा के पास टाइम याद कर रही, बता रही। ठीक है। और पुजारी लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। ओके, सो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कृपया मेरी बातों से आहत मत होया कीजिए, है ना? बुरा मत लगाया कीजिए। मेरा कार्य है सत्य बोलना, मेरा कार्य है आपको सत्य से साक्षात्कार कराना। बहुत मुश्किल होता है सत्य सुनना भी और उससे भी मुश्किल होता है सत्य का पालन करना। पहले सुनने का कोशिश कीजिए और उसके बाद पालन करने का भी कोशिश कीजिए। इतना आसान नहीं होगा, हाँ ठीक है, मान लिया, परंतु कोशिश तो कीजिए। कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, धीरे-धीरे शक्ति मिलेगी, धीरे-धीरे सामर्थ्य होगा, धीरे-धीरे हम मान लेंगे। बाकी अधिकाधिक लोग तो नहीं मानेंगे, ये बात सत्य है। बहुत सारे लोग नहीं मानना है, ठीक है, परंतु कुछ लोग तो मानेंगे। कुछ लोग तो अपना जीवन सार्थक करेंगे, कुछ लोग तो कृष्णा के प्रति समर्पित होंगे, कुछ लोग तो अपने अ अ अ, खोया हुआ प्रेम को पुनर्जागृत कर लेंगे, कुछ तो भगवान की सेवा में लग जाएँगे। पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि कुछ लोग कर रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होना चाहिए अधिक से अधिक लोग करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे और ये सभी को मोटिवेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटिवेशन की कोई बात नहीं होगी। एक बार इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि आप अमेरिका में आए हुए हैं, इस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे सब कोई बुरे-बुरे कार्य करते रहते हैं, आपने तो 4 प्रिंसिपल बना दिया है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। कभी-कभी किसी रिपोर्टर से पूछा जाता था, तो वो बोलते थे कि अगर ये चारों नियम का पालन करना है, तो हम जीवन ही क्यों जी रहे हैं? इससे अच्छा तो मर जाना है। अगर हमको यही 4 नियम का पालन करना है, इससे अच्छा तो मर जाना। सोच के देखिए, लोग मरने को ज़्यादा प्रेफ़र करते थे, 4 नियम पालन नहीं होता। तो एक रिपोर्टर पूछते क्या है कि प्रभुपाद आप तो बोलते हैं कि ये 4 नियमों का पालन करें, तो आपको तो ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। तो इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि असंख्य तारों में से चंद्रमा तो कोई एक ही होता है।
बोले ऐसे तो नंबर आपके पास बहुत कम होंगे, बहुत कम डिसाइपल होंगे आपके, फॉलोअर बहुत कम होंगे। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर कम भी हो, हमको उसकी परवाह नहीं है। हमको परवाह ये है कि सही मार्ग पे चले। हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या? न धनम, न जनम, न सुंदरी। न धन की आवश्यकता है, न जन्म, फॉलोअर, न हमको बहुत सारे फॉलोअर की आवश्यकता है, न सुंदरिम, न सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। हमको इन सभी की इच्छा नहीं है। हमको तो कृष्णा की महिमा गाने की इच्छा है। जब हमारा लक्ष्य मात्र ये रह जाए कि हमको कृष्णा की महिमा गाने की इच्छा है, कृष्णा की सेवा करने की इच्छा है। अब हमारा लक्ष्य एक कि हमको कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा की महिमा गानी है, और साथ साथ और जितने कार्य है वो करेंगे। सभी का आदर होगा, परंतु लक्ष्य तो हमारा एक है। हम लक्ष्य दो बना करके नहीं चल सकते कि भगवान की सेवा करनी है और साथ में ये भी करना है। नहीं, लक्ष्य तो एक ही है। अगर दो लक्ष्य बना रहे हैं तो दूसरा लक्ष्य को पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद भक्ति कर लीजिए। भौतिक मलिनता है तो पहले भौतिक मलिनता समाप्त कर लीजिए, उसके बाद भक्ति कर लीजिए। है ना? हम सभी को ये रास्ते चलना ही होगा। आप लोग कृपया करके वो द्रौपदी महारानी वाला पास टाइम याद रखिए। हमको वो स्थिति लानी ही पड़ेगी, चाहे वो गोपियों वाली स्थिति याद कर लीजिए। ठीक है? गोपियां प्रेम से, प्रेम के मार्ग से कृष्णा याद कर रहे हैं तो हम दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। द्रौपदी महारानी कष्ट से, जब हमारे पास कोई कोई आश्रय नहीं बचा तो हमको कृष्णा चाहिए, परंतु आश्रय तो संपूर्ण रूप से कृष्णा ही होने हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। अब इन दोनों के बीच का भी एक स्थिति, अम्बरीश महाराज, दिखने में ऐसा लग सकता है कि दुर्वासा मुनि ने जो वो क्या दानव प्रकट किया, उसके डर से, भय से अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना करने लगे। बिल्कुल नहीं। अम्बरीश महाराज तो तब भी कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए। मैंने तो आप ही के लिए सेवा की है, मैंने आप ही के लिए व्रत पालन किया, आप ही के लिए पारण किया, अब आपकी जो इच्छा हो वो कर दी। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, समर्पण तो पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति, तभी जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति, तभी जाकर के शुद्धता, नहीं तो संघर्ष। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई होप सभी को समझ में भी आया हो और जीवन का भी लक्ष्य आज बहुत क्लियर हुआ। अगर आज जीवन का लक्ष्य क्लियर करने में मैं आपकी मदद नहीं किया तो मैंने धोखा दिया है। सच में, सच में धोखा दिया। मेरा प्रयास था कि आप लोग शुद्ध रूप से जाने कि क्या कष्ट आता है और किस प्रकार से हमें सही मार्ग पे चलना है ना। चलिए इसी बात पे अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। Yes. पहले गगन प्रभु जी, फिर ऋतुमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुट्टी वैष्णव वृंद की जय भगवान कृष्ण प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए पहले करते हैं दामोदर अष्टकम। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो रोक लें, पूछ लीजिएगा, जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, पहले करें दामोदर अष्टकम। इनफैक्ट पहले तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया था श्लोक का, आप लोग नोट किए होंगे। मैंने तो पहले सोचा था कि एक श्लोक पढ़ना है, उसके बाद तो श्रीमद् भागवतम ही स्टार्ट होगा। ओके चलिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाघवमानं परं दृश्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभिमानं रक्षितं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तम् पराम्भोगयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं नेत्रयुग्नं निजन्तम् पराम्भोगयुग्मेन साकं नेत्रम् मुहुश्वासं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ पितृदैव दामोदरं भक्तिबद्धम् दामोदरं भक्तिवर्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति लीलाविरानन्दे कुण्डे स्वघोषं स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् निमज्जन्तम् त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेम तत्तं परं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे ममस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते गोपाल बालम् सदा मे मनस्यास्तां किमन्ये।
इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले मुखाम्बोजमत्यन्तनीले व्रतं व्रतं कुले कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या स्निग्धरक्तैश्च मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुर्जुम्बितं बिम्बरक्ताधरं रक्तधारणय मनस्यादिरास्तामलं लक्ष्यलाभे लक्ष्यलां मे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालातिनाथना नमो नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो प्रसीद प्रभो दुःखजालातिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाव्यम् एध्याक्षिवेश्य कृपादृष्टिवृत्तियतिदीयमत्वानो गृहाणेशमदृश्य कुबेरात्मजो बन्धुमूर्तैव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मतो कुबेरात्मजोऽपदेव यद्वत् त्वया मोहितो भक्तितो भक्तिभाजो भक्तिभवजो कृतोऽस्य कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये यच्छा न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ प्रेमभक्तिविश्वस्य न मोक्षे मोक्षे गरोऽस्ति गर्भोऽस्ति दामोदरे दामोदरे नमस्ते सुधाम्ने सुराधीप्तिधाम्ने त्वदीयो धरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते सुदाम्ने सुदाम्ने सुरभिर्दधीप्तिधाम्ने सपूरदीप्तिधाम्ने तदियोतराय विश्वस्य विश्वस्य धाम्ने धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिका राधिकाय तवदीयविरहाय नमो नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय तवदीयप्रियाय तदीयप्रियाय नमो नमो नन्दलीलाय नन्दलीलाय देवाय तोभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमोऽस्मरं नन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डले लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले व्रजमानम् विराजमानम् यशोदाभियोलोकलाधवमानम् परं दृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदपयोलुप्तमानं परामर्शमत्यन्तो परामृष्टत्य धृत्य ततो गोप्या गोप्य हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासा है तो पूछ। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी आप लैपटॉप पे हैं क्या? स्क्रीन शेयर कर सकती है? कीर्तन। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कहीं से भी कुछ भी। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछना, तो मतलब जो जो बोला है सब पालन करने के लिए तैयार है। कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जो बोला है सब पालन कर लेंगे, है ना? हरे कृष्णा। सही है ना?
वेरी गुड। ये भी वैसे ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर पालन कर लीजिएगा तो शुद्ध भक्त बन जाइएगा। कृष्णा के धाम चले जाइए, बस हो गया फिर तो। और क्या चाहिए? मेरे को कुछ और चाहिए क्या? हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें। किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है ना? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ। तो इसलिए अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली में गायत्री मंत्र का जाप 2 तरीके से गड़बड़ है। गायत्री एक्चुअली में देखिए कृष्णा ने कहा मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बोला है। परंतु देखिए क्या है, गायत्री मंत्र हम लोगों को हाँ, इनिशिएशन के बाद हम मिलता है। हम ब्राह्मण हैं, हमने यज्ञोपवीत में हमको कहा गया हाँ। कि आपको गायत्री मंत्र का रोज नहीं, जाप नहीं। करना चाहिए। हाँ, किसने कहा? जो जो आए थे पंडित जी, हाँ। उन्होंने कहा कि देखिए, यज्ञोपवीत के बाद हाँ? आपको यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, उसमें आपकी बुद्धि का विकास होगा। हाँ। हमको बुद्धि का तो विकास नहीं मिलता। तो बुद्धि का विकास का मतलब आप जो पढ़ रहे हो, हाँ। पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें आपको पढ़ाई में आपके अच्छे नंबर आएँगे, आप अच्छा एक्सीलेंस जॉइन करेंगे और हमने टॉप भी किया एमएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ, ठीक है। और लेकिन एक बात और भी बताऊँ मैं आपको हाँ, कि मैंने गीता को भी निरंतर सन 67 से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। हरि, हरि बोल। गीता को भी मैं पढ़ता आ रहा हूँ हाँ, और गीता को सुनता भी आ रहा हूँ। हरि, हरि बोल। बहुत अच्छी और बात है। इसी चाल में हुँ, आपसे जब ऋचा का ऑफर आया, तो हुँ, मैं तुरंत तैयार हो गया, हरि क्योंकि मैं कृष्णा के नज़दीक पहुँचने में मैं बहुत आतुर था। हुँ, लेकिन पता नहीं क्या है कि जो बचपन में पढ़े संस्कार हैं, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय का जाप, हाँ, ये मैं नहीं छोड़ पाया। हाँ, ठीक है। इसको भी करता रहा और हाँ, वो भी करता रहा। इसका मैं समझता हूँ इससे हम कृष्णा से दूर तो नहीं जा रहे, नहीं हम कृष्णा के एक्चुअली नज़दीक ही जा रहे हैं। देखिए नहीं, महामृत्युंजय जब करेंगे ना, तो महामृत्युंजय का लक्ष्य क्या है, महामृत्युंजय का जो लक्ष्य है, वो कभी भी अगर शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, उसका लक्ष्य मात्र एक ही होता है। हम महाकाल भी गए हैं, हाँ? हम केदारनाथ धाम भी गए हैं, अच्छा, अच्छा है। प्रभु जी तो जागेश्वर भी पहले गए क्या हैं। देखिए देखिए क्या होता है कि आपने जो पिछले क्लास में किया है? उसका आपको आगे बेनिफिट मिलता है? जी, जी। सपोज़ कीजिए आपने 10th में जो पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए तो आपका एडमिशन अच्छी जगह होता है। परंतु 10th का नंबर फिर एडमिशन के बाद काम में नहीं आता। उसके बाद अपनी नई पढ़ाई करनी होती है। तो उसमें भी हम फर्स्ट आए, हाँ, तो वही है। थ्रू अब आउट वही फर्स्ट है क्लास कि रहे आगे की पढ़ाई अच्छे से कीजिए। पहले की पढ़ाई बहुत अच्छे से किए थे। और पढ़ाया भी हमने 50 साल है। हाँ। नहीं, नहीं, मैं कुछ और हमारे बोल रहा हूँ। पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं। हाँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपने बहुत अच्छा किया, वो बात अच्छी बात है। परंतु आगे अब और आगे के लिए और अच्छा करना है ना? इसी वजह से तो आपसे जुड़ा हूँ, हाँ? इसी वजह से तो आपसे जुड़ा हूँ। बिल्कुल सही है। देखिए, तो करना क्या है कि शिव जी की भक्ति, शिव जी की उपासना कभी भी हम करें तो उसका लक्ष्य यही होता है कि कृष्णा की भक्ति करनी है। उसका लक्ष्य कभी ये नहीं हो सकता। अब सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऑल्दो मैं इस एग्ज़ाम्पल से पूरी तरीके से मैं खुद एग्री नहीं कर रहा, परंतु आपको बस एक एग्ज़ाम्पल एक आइडिया के लिए दे रहा हूँ। अभी सपोज़ कीजिए महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, तो महामृत्युंजय जप से क्या होगा? हमारा शरीर अच्छे से रहेगा, है ना? हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, परंतु इस स्थिति के बाद भी कुछ है। ये तो यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ का बहुत अच्छा कर लिए, है ना? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भी यही करना है। मतलब 10th पास करने के बाद भी 10th की बुक पढ़नी है, नहीं? 10th पास करने के बाद 10th की बुक तो हो गई। अब आगे क्या करना है? गायत्री मंत्र एक्चुअली में गलत नहीं भी और गलत है भी। एक तरफ से देखें आपके लिए गलत नहीं इसलिए होगा क्योंकि आपको किसी ने उस समय बोला जिसको आप गुरु माने। पुरोहित पंडित जी को पुरोहित आपने गुरु माना, हाँ, पुरोहित माना, तो पुरोहित जाना तो पुरोहित के देखिए आज्ञा अनुसार कर रहे हैं तब तो वो सही। बिना आज्ञा के गायत्री मंत्र जो आजकल हम लोग क्या करते हैं, मैं भी करता था, मैं भी करता था। किसी समय में मैं भी करता था। क्या करता था? यूट्यूब पे चलाया, गायत्री मंत्र चला करके सुनते रह रहे। वो नहीं, अलाउड नहीं है।
नहीं, मैं ये नहीं करता, मैं खुद अपना करता हूँ, हाँ। नहीं, खुद नहीं। पाठ करता हूँ। नहीं, अगर खुद से भी कर रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है। अगर किसी ने आपको आदेशित किया तब कर सकते हैं। भाई गायत्री पुरोहित मंत्र पुरोहित को पुरोहित इनिशिएशन जी के ने बाद दिया जाता है। पुरोहित जी ने ही कहा मुझसे, तो मैं तब से मैं सीख पाया यज्ञोपवीत संस्कार के बाद। हाँ, तो उनको आपने गुरु जाना तभी जाकर के उनसे सीखा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। परंतु अ, ये कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन में भी नहीं आता। गायत्री मंत्र कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं आता। गायत्री मंत्र कृष्णा के ही लिए, ठीक है? तो ये कर सकते हैं। परंतु मैं अन्य तो सोचता हूँ कि सीढ़ी चढ़ता-चढ़ता मैं आपके पास सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। हाँ, सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, परंतु अब अगर सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उसका इतना सीमित लक्ष्य तो नहीं रह सकता, परंतु एक बार के लिए मान लें, अगर हम महामृत्युंजय जप कर रहे हैं और अपने शरीर के लिए, अपने स्थिति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो हम पहले ये शरीर में ही बद्ध है ना। हम शरीर की अवस्था को ही मान रहे हैं ना। अगर शरीर की अवस्था को मान रहे हैं, तो आत्मा के लिए काम कहाँ कर रहे हैं? आप आत्मा के लिए काम कीजिएगा तब ना आत्मा वाला फल मिलेगा। कृष्ण ने क्या बोला है? साफ-साफ बोला है, जो चीज़ चाह रहे हैं उसके लिए कार्य कीजिए, वो फल मिल जाएगा। आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं तो शरीर का फल मिलेगा, आत्मा के लिए कर रहे हैं तो आत्मा का फल मिलेगा। कौन-सा कार्य? यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है? तो अच्छा है, अभी तक किया बहुत अच्छा है, परंतु आगे के लिए वही करें, वो ठीक तो नहीं है। है ना? और देखिए, मैंने तो गुरु की और आचार्यों की बात की है। मैं तो अपने मन से कुछ बोलता नहीं। मैं शास्त्रों के थ्रू बोलता हूँ। मैं अपने मन से नहीं बोलता। है ना? तो ठीक है। और जब भी मुझको अपॉर्च्युनिटी मिली है, हुँ, तो मैं मथुरा वृंदावन ज़रूर गया हूँ। हाँ, अभी जल्दी-जल्दी आइएगा। नहीं, कई बार गया हूँ। हुँ, आपसे मिलने के पहले कई बार गया हूँ। हुँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट आप बाकी डिवोटीज़ भी ये बात देख रहे हैं। आप इतना जल्दी इतना बदलाव आप में आया, या इतना जल्दी आप इतना समर्पण किए, या इतना क्लियरली अपने लक्ष्य को समझा, हैं? इस उम्र पे ये बात कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु आप में इतना बदलाव इसीलिए आया है। इसीलिए सही आया है बात। क्योंकि आप में मलिनता की कमी बहुत कमी है। परंतु मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, अगर आप 99 के भी स्तर पे बैठे हुए हैं? बहुत उत्तम स्थिति पे, 100 तक पहुँचना है, 99 के स्तर पे बैठे हुए हैं, तब भी मैं आपको स्थिर तो नहीं बैठने दूँगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्रभु जी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप कुछ मत कीजिए। ना। अभी जो मलिनता उसको भी हटाइए और 100 का स्तर पा लीजिए, कृष्णा के स्तर पे भक्त बन जाइए और उसके बाद दूसरों को भक्त बनाइए, कृष्णा के धाम जाइए और दूसरों को भी लेकर के जाइए। ठीक, ठीक। है ना? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हाँ, यही करना ही है। जो आपने कहा वही होगा। हाँ, वही करना चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे! सादर दंडवत। देखिए, सबको ही हृदय से आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, कीर्तन सुनते हैं, है ना? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। चलिए, लाइव रोकते हैं और कीर्तन सुनते हैं।